Hello students, welcome back. From today's lecture, we will discuss the human reproduction. Now as we know, the human is a mammal animal यानी कि वो mammal group में included है because of the particular characteristic of all mammals, that is mammary gland. और ह्यूमन जो है उसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, यानी कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है ये दोनों फ्यूज़ होके जाइगोट बनाएंगे और उस जाइगोट में से नया ऑफस्प्रिंग जनरेट होगा. सो इन दिस चैप्टर we will discuss about the post fertilization event, and in this we will discuss about male and female reproductive system, then the process of sperm formation, that is gametogenesis, and then ovum formation in female, that is oogenesis. So both this oogenesis and spermatogenesis is post fertilization events. Then the second is fertilization, that is how the male gamete reaches to the female gamete and how fertilization occurs in human. Then the development of embryo inside the womb, and then the process of the birth of new individual. So humans are monosexual animal, and their sexuality we can define by some morphological or external characters as well as from the internal characteristic also. So first we are going to discuss the external characters which differentiate male and female. So first, the main characteristic of mammals, that is mammary gland. So it is present in both male and female. But in male, the mammary gland is namesake gland, यानी वो सिर्फ नाम के लिए ही होती है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता. While in female, mammary gland is well developed because mammary gland का जो सिक्रेशन है मिल्क, वो न्यूबॉर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि न्यूबॉर्न जो है वो सिर्फ उसकी मदर के मिल्क ही इनिशियली कंज्यूम करते हैं और सारे जो न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज़ एक्सेट्रा है वो उसे उस मेमोरी ग्लैंड में से जो मिल्क सीक्रेट हुआ है उसी में से मिलते हैं. देन beard and mustache are developed in male while it is not developed in female. And the muscles of male are strong, and compared to male muscle, the female muscles are weak. Then the voice of male is heavy and female has shrill voice. So these are some external characteristics. Now here is the internal characters, that in male the main reproductive part of the male reproductive system is testes, and in female the reproductive part is ovary, and in testes are located in the scrotum. अब जो स्क्रोटम जो है वो बॉडी के बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर टेस्टिस होती हैं. देन ovaries are located in abdominal cavity. Then testes produce sperms. टेस्टिस जो है उसमें से सिर्फ स्पर्म्स ही प्रोड्यूस होंगे, while from the ovary ओवा, और जिसे हम एग सेल भी बोलते हैं, वो जनरेट होगा. देन इन मेल फ्रॉम द टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिलीज्ड, that is the male hormone.
and from the ovary estrogen and progesterone is released. तो ये हमने बात की कि हम मेल और फीमेल को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक नंबर 1, that is male reproductive system. So mainly in male reproductive system we included reproductive parts like scrotum, testes, epididymis and vas deferens. और इसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स भी होती हैं, दैन कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होते हैं. सो हम ये सारे पार्ट्स जो है वो 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं. उससे पहले हम एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसे एक बार देख लें. तो सबसे पहले टेस्टिस होंगे, देन टेस्टिस के सराउंडिंग होगा, टेस्टिस की लोकेशन जो है वो होगी स्क्रोटम में. और ये सारे टेस्टिस जो हैं वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होंगे जो कि है एपिडिडाइमिस. देन ये एपिडिडाइमिस जो है वो ओपन होगी वास डिफरेंस में. देन ये वास डिफरेंस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के क्रॉस में होगा. देन यहाँ पे क्या होगा, जो मेन एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है वो एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स, देन सेमिनल वेसिकल एंड इसके अलावा एक और है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया. देन उसके बाद है अब ये ट्यूब जो है वो यूरेथ्रा, देन पेनिस, और यहाँ पे एक ओपनिंग होगी जहाँ से स्पर्म और यूरिन जो है वो दोनों साथ में ही बॉडी के बाहर रिलीज होंगे. नाउ वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल. सो फर्स्ट इज टेस्टिस. सो अगर हम टेस्टिस की लोकेशन की बात करें, then they are located outside of the abdominal cavity and scrotum. Now scrotum is a bag-like structure in which testes are located. अब ये स्क्रोटम जो है उसका जो एवरेज टेम्परेचर वो हमारी नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो होता है. अब ये टेम्परेचर स्क्रोटम जो है उसका लो क्यों होता है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस यानी कि जनरेशन ऑफ स्पर्म, इस प्रोसेस के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए. तो इसके लिए टेस्टिस जो है उसकी लोकेशन स्क्रोटम में होती है. देन अब हम टेस्टिस की साइज़ की बात करें तो उसकी लेंथ जो है वो अराउंड 4.5 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो है अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. अब मेनली ये पूरा टेस्टी जो है it is covered by a fibrous connective tissue that is tunica albugenia which is present surround the each testis. यानी कि दोनों टेस्टिस जो है उसके सराउंडिंग ये ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है. और ये जो टिश्यू है इट विल एक्सटेंड्स इनवर्ड एंड डिवाइड ईच टेस्टी इनटू लोब्यूल्स. जैसे अब यहाँ पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये है वो ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा टेस्टिस वो कंपार्टमेंट या फिर जिसे हम लोब्यूल्स भी बोलते हैं उसमें डिवाइड हो जाएगा.
ये आप सेकंड डायग्राम में इजीली देख रहे हो। ये जो आपकी ब्लैक लाइनिंग है ये है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, जो कि पूरे टेस्टी को कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइड्स करते हैं। तो अब ये जो टेस्टी की कंपार्टमेंट है या फिर जो लॉब्यूल्स है उसे हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लॉब्स। और अराउंड एक टेस्टिस में 250 तक लॉब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये सारे लॉब्यूल्स जो यहाँ पे मिले हैं हमें 250, ये इन सारे लॉब्यूल में थोड़ी बहुत ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। सो द ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल हैव 1 to 3 कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो कॉइल्ड ट्यूब्यूल ये वाली, तो इसे हम बोलेंगे सेमी इन्फ्रेंस ट्यूब्यूल्स। और एक कंपार्टमेंट जो है यहाँ पे एमसीक्यू के लिए खास याद रखना, एक कंपार्टमेंट जो है या फिर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल जो है उसमें अराउंड 1 to 3 सेमी इन्फ्रेंस ट्यूब्यूल्स जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस तरह से टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है, मेनली टेस्टिस के सराउंडिंग एक ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, एंड देन इट विल एक्सटेंड इनवर्ड द टेस्टी and divide the testes into several compartments, that is around 250। और ये जो 250 कंपार्टमेंट्स हैं उसे हम टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। और ये हर एक टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल में अराउंड 1 to 3 कॉइल्ड सेमी इन्फ्रेंस ट्यूब्यूल्स होगी। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो सेमी इन्फ्रेंस ट्यूब्यूल्स है जो कि टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स में प्रेजेंट है उसके स्ट्रक्चर की। तो मेनली इसमें 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक है सर्टोली सेल, देन उसके बाद है स्पर्मेटोजीनियम, और यहाँ पे एक थर्ड सेल होगा, ये आप जो देख रहे हो वो, जो कि है लेडिंग सेल। तो ये है हमारे लेडिंग सेल्स। तो ये 3 टाइप्स के सेल्स हैं जो कि सेमी इन्फ्रेंस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट हैं। एक है ये हमारे स्पर्मेटोजीनियम, देन सेकंड है सर्टोली सेल्स। इस तरह के जो सेल्स हैं वो है हमारे सर्टोली सेल्स, एंड देन थर्ड टाइप ऑफ सेल दैट इज लेडिंग सेल। तो अब ये जो 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट है सेमी इन्फ्रेंस ट्यूब्यूल में, उन हर एक का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। जैसे कि हम स्पर्मेटोजीनियम की बात करें तो वो डिवाइड होगा और उसमें से फॉर्म होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेल जो है वो है हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देन प्राइमरी में से डेवलप होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिवाइड होके उसमें से बनाएंगे स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड जो है वो डिवाइड होगा और उसमें से फॉर्म होंगे स्पर्मेटोजुआ। तो इस तरह से ये जो स्पर्मेटोजीनियम है वो मेनली स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि ये स्पर्मेटोजीनियम है उसका मेन फंक्शन है स्पोर फॉर्मेशन। देन हम सेकेंड टाइप के सेल की बात करते हैं जो कि है सर्टोली सेल। अब ये सर्टोली सेल जो है उसका मेन फंक्शन है दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल, यानी कि जैसे ही जर्म सेल जिसे हम स्पर्मेटोजीनियम यहाँ पे बोलते हैं, तो ये जैसे ही स्पर्मेटोजोइड
फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। तब जो उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इस सर्टोली सेल्स में से मिलते हैं और इस सर्टोली सेल्स को सेरोटोली भी सेल्स बोले जाते हैं। देन आवर थर्ड टाइप ऑफ सेल दैट इज लेडिंग सेल। तो ये लेडिंग सेल जो है उसका मेन फंक्शन है इट विल रिलीज दी एंड्रोजन। अब ये एंड्रोजन जो है वो एक मेल हार्मोन है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एंड्रोजन रिलीज नहीं हो रहा तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो भी कैरी आउट नहीं होगी। सो फॉर द spermatogenesis process the release of androgen is very important। सो अब हम बात करते हैं ये जो सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल्स है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना। ये सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल्स जो है वो सबसे पहले याद करो उसकी लोकेशन कौन सी है। यानी कि ये हर एक सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल जो है वो टेस्टिस के कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है। अब ये सारी सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल्स जो है जो हर एक लॉब में से प्रेजेंट है अब वो डायरेक्टली ओपन होगी वैसे एफेरेंशिया में। अब वैसे एफेरेंशिया क्या है, यहाँ पे ये जो आप नेट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो है मेनली वैसे एफरेंशिया। अब ये वैसे एफरेंशिया में ये सारे सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल है वो किससे ओपन होगी, देन थ्रू बाय रेटेड टेस्टिस। अब ये रेटेड टेस्टिस जो है ये यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रक्चर जिसमें हर एक ये जो सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल है वो ओपन हो रही है। यहाँ पे आप अच्छे से देखना या फिर आप इस डायग्राम में भी देख लो ये सारे सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल जो है वो एक जगह पे ओपन हो रही है और ये सारी सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल जहाँ पे ओपन होगी उसे हम बोलेंगे रेटेड टेस्टिस। अब ये सारी जो रेटेड टेस्टिस है अब हम पर्टिकुलर रेटेड टेस्टी इंडिकेट जहाँ पे मैं कर रही हूँ तो ये जो मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रही हूँ वो है रेटेड टेस्टिस। अब ये रेटेड टेस्टिस जो है वो ओपन होगी मेनली एपिडिडाइमिस में थ्रू दी वैसा एफरेंशिया। तो यहाँ पे अब ये जो आप देख रहे हो वो है वैसे एफरेंशिया जिसमें सारी सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल्स जो है वो ओपन होगी। अब जैसे ही ये सारी वैसा एफरेंशिया स्पर्म जो है वो कलेक्ट करेगी जो कि सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल में ओपन हुए हैं। नाउ अब हम बात करते हैं द सेकेंड ऑर्गन ऑफ और द सेकेंड पार्ट ऑफ male reproductive system that is epididymis. Now the epididymis is highly coiled tubules net-like structure and the length of this epididymis is around 6 मीटर। अब इसकी लेंथ जो है वो ये बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये पूरी जो एपिडिडाइमिस स्ट्रक्चर है वो पूरा हाईली कॉइल्ड है तो उसकी वजह से वो कम स्पेस में भी इजीली अरेंज्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्म हुए हैं वो मेनली थ्रू दी वैस एफरेंशिया वो मेनली ओपन होगी एपिडिडाइमिस में। तो इस तरह से जिस स्पर्म जो है
वो अब एंटर होगी एपिडिडाइमिस में। अब हम एपिडिडाइमिस के फंक्शन की बात करें, देन इट विल प्रोवाइड अ टेम्पररी स्टोरेज साइट फॉर द इमेच्योर स्पर्म। यहाँ पे एक बात खास याद रखना कि एपिडिडाइमिस जो है वो टेम्पररी स्टोरेज साइट है, वो परमानेंट स्टोरेज साइट नहीं है। सो इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज साइट फॉर द इमेच्योर स्पर्म, यानी कि जो टेस्टिस में से स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं वो अभी इमेच्योर हैं, तो वो अब मैच्योर कहाँ पे होंगे? देन द स्पर्म कंप्लीट देयर maturation process, and the main important, they gain the ability to swim in the area of epididymis. So epididymis जो है उसके main 3 functions हैं. First, it will provide the temporary storage site for the immature sperm. Then the sperm complete their maturation process in epididymis. Then third, the sperm gain ability to swim so that they can reach to the egg during the fertilization. तो ये एपिडिडाइमिस के मेन फंक्शन थे। अब ये जो एपिडिडाइमिस है, इट इज़ प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पिंक कलर की आउटलाइन दी गई है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो है टेस्टी का, और उसके सराउंडिंग जो है वो प्रेजेंट है इस तरह से। ये जो है वो है हमारा कंप्लीट एपिडिडाइमिस विच इज़ द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। सो व्हेन द मेल इज सेक्सुअली स्टिम्युलेटेड, यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस चल रही होगी, देन द मेल इज सेक्सुअली स्टिम्युलेटेड, द वॉल ऑफ एपिडिडाइमिस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सपोज आपने एक बैग लिया हुआ है जिसका ऊपर वाला जो एरिया है वो ओपन है और आपने उसमें वाटर भर के रखा है। अब आप जैसे ही उस पाउच को प्रेशर दोगे यानी कि दबाओगे तो उसमें से पानी जो है वो बाहर रिलीज होगा। सिमिलरली व्हेन द मेल इज सेक्सुअली स्टिम्युलेटेड, देन द wall of epididymis will contract and the sperms are transported into vas deferens। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो है वैसे डिफरेंस। तो अब इसमें ये जो हमारा हाईली कॉइल्ड एपिडिडाइमिस है वो मेनली ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ही स्पर्म जो है वो फॉर्म कहाँ पे हुए हैं, तो ये सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल्स में। देन बाय द रेटेटेस्टिस इट विल ओपन इनटू वैसे एफरेंशिया एंड देन इन एपिडिडाइमिस, और ये एपिडिडाइमिस है उसके थ्रू वो ओपन होंगे वैस डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हुए। नाउ द थर्ड इज वैस डिफरेंस। अब इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो वो है अराउंड 45 सेंटीमीटर, यानी कि वैस डिफरेंस इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो ये जो पर्पल कलर का कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिया है, ये वाला ये है एपिडिडाइमिस, और ये एपिडिडाइमिस जो है वो ओपन होता है वैस डिफरेंस में। तो यहाँ पे आप ये जो रेड कलर की पूरी ट्यूब्यूल देख रहे हो वो है वैस डिफरेंस। अब ये वैस डिफरेंस जो है इट विल रन अपवर्ड फ्रॉम दी एपिडिडाइमिस, यानी कि इस डायरेक्शन में। इट विल रन एपिडिडाइमिस थ्रू दी
inguinal canal and then enters the abdomen, and then most important, it loops over the urinary bladder. तो यहाँ पे आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो वो है बी फॉर ब्लैडर, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे हमें एक बात खास याद रखनी है कि मेल में स्पर्म रिलीज साइट और यूरिन रिलीज साइट दोनों एक ही ओपनिंग से होती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर में से ट्यूब्यूल्स निकलती हैं वो, और जो स्पर्म को रिलीज करने के लिए जो ट्यूब्यूल है, ये दोनों कलेक्टिवली बाहर ओपन होगी। तो अब ये जो वैसे डिफरेंस है वो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा अराउंड दी यूरिनरी ब्लैडर। देन यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो अब वेस एफरेंस है वो मेनली बाइंड होता है थ्रू दी seminal vessels. So the distal end of vasa deferens is expanded, and in these regions the seminal vesicle open. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये थोड़ा एक्सपेंडेड रीजन है, ठीक है। अभी ये वैसा डिफरेंस का ही एक पार्ट है, और यहाँ पे आप ये जो एसवी लेबल्ड किया हुआ है यानी कि सेमिनल वेसिकल, अब ये सेकंड डायग्राम में क्लियरली देख रहे हो, ये जो पार्ट है वो है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ट्यूब एंटर हो रही है वो है वैसा डिफरेंस। तो अब ये जो सेमिनल वेसिकल की जो ट्यूब्स है, ठीक है, ये ट्यूब्स जो है वो ओपन होगी वैसा डिफरेंस में थ्रू दी एजेक्यूलेटरी डक्ट्स। तो इसके थ्रू ये सेमिनल वेसिकल जो कि एक एसेसरी ऑर्गन है वो ओपन होगी। देन आफ्टरवर्ड दिस वैसा डिफरेंस इज नोन एज ejaculatory ducts. Then this duct of ejaculatory, it will join with the duct of urinary bladder, यानी कि यहाँ पे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर की जो एजेक्यूलेटरी डक्ट्स है वो, और जो सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल की जो एजेक्यूलेटरी डक्ट्स है ये दोनों जहाँ पे कंबाइन होगी, देन आफ्टरवर्ड इट विल नोन एज यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा क्या है, व्हेन द डक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जॉइन विद द एजेक्यूलेटरी डक्ट देन इट इज नोन एज यूरेथ्रा। यानी कि यहाँ पे आप अब ये जो ट्यूब देख रहे हो, ये पूरी ट्यूब जो है उसे अब हम बोलेंगे यूरेथ्रा। यानी कि इनिशियली इट इज़ नोन एज वैसा डिफरेंस, देन जब उसमें सेमिनल वेसिकल ओपन होगी देन इट इज़ नोन एज एजेक्यूलेटरी डक्ट्स, एंड देन जब उसमें यूरिनरी ब्लैडर की भी एजेक्यूलेटरी डक्ट ओपन होगी देन इट इज़ नोन एज यूरेथ्रा, ठीक है। देन बिफोर यूरेथ्रा पासिस थ्रू द पेनिस डक्ट, अब यहाँ पे पेनिस लाइक जो स्ट्रक्चर है यानी कि ये वाला यहाँ पे, तब मेनली ये जो अभी फॉर्म हुआ यूरेथ्रा वो थ्रू दी पेनिस बॉडी के बाहर रिलीज होता है। अब यहाँ पे आप ये जो ट्यूब देख रहे हो वो है कंप्लीट यूरेथ्रा, ये वाली जो मिडिल में है वो। अब बिफोर यूरेथ्रा passes through the penis, a duct from bulbourethral gland join with this urethra,
and finally urethra open at the tip of penis. तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये पेनिस की जो टिप है वहाँ पे यूरेथ्रा जो है वो ओपन होगा, तो उसी में से यूरिन जो है वो भी रिलीज होगा और जो सीमेन जनरेट होगा। अब सीमेन क्या है वो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं एक्सेसरी ऑर्गन के साथ। तो ये एक लिक्विड स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी ओपन होंगे फ्रॉम दी टिप ऑफ पेनिस। तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अब कंप्लीट होता है। देन अब हम एक बार डिस्कस कर ले द कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द फर्स्ट इज टेस्टिस। और ये टेस्टिस जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया से अराउंड 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होंगे। देन ये सारे ल्यूब्यूल्स जो हैं उसमें अराउंड 1 to 3 सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगी। देन इन दिस सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल्स स्पर्म जो है वो जनरेट होंगे और ये स्पर्म जो है वो इमेच्योर होंगे। देन दिस स्पर्म विल एंटर इनटू दी एपिडिडाइमिस। अब यहाँ पे ये जो टेस्टिस के सराउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो अराउंड बोथ द टेस्टिस दैट आर दी epididymis, then it will provide temporary storage site and allow the maturation of sperm until they gain ability to swim. Now from the epididymis sperm will enter into the वैसा डिफरेंस। ये वैसा डिफरेंस जो है वो ब्लैडर के अराउंड लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इस तरह से ये लूप, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो वैसा डिफरेंस है उसके अंदर जैसे ही सेमिनल वेसिकल ओपन होगी देन उसके बाद उसे हम लेबल करेंगे एज अ एजेक्यूलेटरी डक्ट्स। और इस एजेक्यूलेटरी डक्ट्स में ओपन होंगे मेनली द डक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, देन इट इज नोन एज यूरेथ्रा। Then urethra will be open from the tip of penis. So this was the whole overall male reproductive system. अब आप यहाँ पे बाकी की भी ग्लैंड्स और ऑर्गन्स देख रहे हो, जैसे कि एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, देन सेमिनल वेसिकल, पेनिस। तो इन सारे ऑर्गन्स का फंक्शन जो है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इन मेल। सो सबसे पहले ही फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल। अब जो सेमिनल वेसिकल है उसकी अगर हम लोकेशन की बात करें देन इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्लैडर। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है यूरिनरी ब्लैडर और उसका जो बेस एरिया है यानी कि यहाँ पे ये जो आप इंसेक्ट की विंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये है मेनली सेमिनल वेसिकल। अब इसे सेमिनल वेसिकल या फिर सेमिनल वेसिकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस अराउंड 60% फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ दी सीमेन। यानी कि सीमेन में जितना भी लिक्विड होगा उसका जो 60% वॉल्यूम है वो इस सेमिनल वेसिकल के थ्रू जनरेट होता है। अब हम इस लिक्विड की या फिर फ्लूइड की बात करें तो उसमें मेनली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लाइक शुगर, विटामिन सी एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं और इन सब का मेन फंक्शन है दे विल नरिश दी स्पर्म। यानी कि स्पर्म की नरिशमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मेनली इस सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन में
प्रेजेंट होते हैं एंड दिस सिक्रेशन इज थिक एंड येलोइश विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ seminal vesicle secretion. Now this seminal vesicle duct will join with the vas deferens and then afterward this vas deferens is known as ejaculatory ducts. तो अब यहाँ पे हम फिगर में देखिए तो सबसे पहले ये है हमारे सेमिनल वेसिकल जो कि एक पैर में प्रेजेंट है। देन अब ये वैसे डिफरेंस की जो यहाँ पे ट्यूब आ रही है उसमें ओपन होंगी थ्रू दी एजेक्यूलेटरी डक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हैं एजेक्यूलेटरी डक्ट्स। देन आफ्टरवर्ड दिस वैसे डिफरेंस इज नोन एज एजेक्यूलेटरी डक्ट्स। देन दी सेकेंड एसेसरी ग्लैंड दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब हम प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन की बात करें देन इट इज लोकेटेड एट द पोस्टीरियर रीजन ऑफ ए यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका जो पोस्टीरियर एरिया है यानी कि जो पीछे वाला एरिया है वहाँ पे मेनली प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो लोकेटेड है एंड द मेन फंक्शन। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका जो ये वाला पोस्टीरियर एरिया है वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कंप्लीट ये है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका सिक्रेशन थोड़ा बहुत मिल्की होता है यानी कि मिल्की वाइटिश कलर का होता है एंड दिस सिक्रेशन इज वेरी बेनिफिशियल इन एक्टिवेटिंग द स्पर्म्स। यानी कि स्पर्म का एक्टिवेशन जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन की वजह से होता है। नाउ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर द यूरेथ्रा क्योंकि आफ्टर द यूरिनरी ब्लैडर उसके बाद हम ये जो वैसे डिफरेंस की ट्यूब्यूल है उसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। देन द प्रोस्टेट ग्लैंड विल ओपन इन यूरेथ्रा बाय द स्मॉल डक्ट्स। तो इस तरह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन है वो भी यूरेथ्रा में ओपन होगा। देन दी थर्ड एसेसरी ग्लैंड दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है तो उसकी लोकेशन हम सबसे पहले देखें तो इट इज़ लोकेटेड बीनेथ दी प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ पे आप ये जो देख रहे हो वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके नीचे आप ये जो स्मॉल राउंड्स देख रहे हो ये है हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उसकी हम सिक्रेशन की बात करें यानी कि जो सब्सटेंसेस इसमें से सीक्रेट होते हैं दे आर मेनली अल्कलाइन फ्लूइड एंड इट विल एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेंट। यहाँ पे खास याद रखना इट विल एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेंट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि जैसे ही मेल के जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल के वजाइनल पार्ट में एंटर होंगे तब ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन है वो एज ए लुब्रिकेंट फंक्शन करेगा। ठीक है, तो ये हमने बात की 3 एसेसरी ग्लैंड की। अब इन सब के सिक्रेशन के मिक्सचर की बात करें तो वो है सीमेन। तो सीमेन इज अ मिल्की वाइट and sticky mixture of sperms and the secretion of accessory glands that is prostate gland, bulbourethral gland and the third gland that is the seminal vesicle। तो ये तीनों एसेसरी ग्लैंड का सिक्रेशन और जो सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल में से स्पर्म्स जनरेट हुए हैं वो इन सब का मिक्सचर जो है
उसे हम बोलेंगे सीमेन। सो द एवरेज पीएच ऑफ सीमेन इज अराउंड 7.2 to 7.6, यानी कि अल्कलाइन है। अब ये पीएच अल्कलाइन है टू न्यूट्रलाइज दी पीएच ऑफ वजाइनल फ्लूइड, और जो वजाइनल फ्लूइड है उसकी पीएच है अराउंड 3.5 to 4.0। तो इस पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए सीमेन जो है उसकी पीएच अल्कलाइन है। और हम एवरेज वॉल्यूम की बात करें सीमेन की तो वो है अराउंड 3 to 4 ml, और ये जो 3 to 4 ml ऑफ सीमेन है उसमें अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ दी लास्ट पार्ट ऑफ मेल reproductive system, that is penis. Now this penis is cylindrical organ that is located frontal region of the scrotal sacs, यानी कि सपोज ये स्क्रोटल वैक्स है तो ये सारी जो स्क्रोटल की सैक यानी कि जो बैग है उसके बाहर की तरफ इस तरह से एक सिलेंड्रिकल पार्ट जो प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं पेनिस। और जो पेनिस जो है उसका मेन फंक्शन है, इट इज यूज टू डिपोजिट स्पर्म्स इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल, यानी कि जो स्पर्म ट्रांसफर की प्रोसेस है फ्रॉम मेल टू वजाइना ऑफ फीमेल, इट विल बी डन बाय द पेनिस। नाउ ये जो पेनिस का डिस्टल एंड है उसे हम बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। वो कवर्ड होता है स्किन के एक थिक लेयर से जिसे हम बोलते हैं फोरस्किन। तो ये था कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about female reproductive system and the accessory glands of the female reproductive system. And that's your homework for today.